Hi everyone. In this video we will solve a LR puzzle from past year mock. Please pause the video first and try this set. In this set we are given that Anusha, a teacher, conducted an exam for 5 students P, K, G, S and R. Each student received a different mark in the exam and Anusha ranked the 5 students from 1 to 5 based on their marks in the exam such that a numerically lower rank is considered better than a numerically higher rank. Okay. However, before revealing their marks to the 5 students, she asked each of them to guess the rank of all the 5 students. Okay. The following information is known about the ranks guessed by the 5 students. Okay. सबसे पहले तो हम अपनी टेबल बना लेते हैं. P, K, G, S, R. ओके. यहाँ पर हम लिख देंगे उनकी एक्चुअल रैंक जो है. ओके. यहाँ पर जो उन्होंने रैंक गैस की है सभी की P, K, G, S and R. Okay. Except for Pawan, none of the students guessed that the rank of Gaurav would be better than that of Ram. Okay. None of the students correctly guessed the actual rank of any student. Okay. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर हमारे पवन की एक्चुअल रैंक 1 है तो ना ही पवन ने खुद की रैंक 1 गैस की है, ना ही किरण ने खुद पवन की रैंक 1 गैस की है, ना ही गौरव ने, ना ही श्रवण ने और ना ही राम ने. तो अगर पवन की एक्चुअल रैंक 1 है तो पूरी टेबल में उसकी जो रैंक 1 है वो नहीं आएगी. ओके. Now, no student guessed their rank to be worse than third. Okay. Except for Kiran, none of the students guessed their own rank to be 1. Okay. Except for Kiran, none of the friends guessed their own rank to be 1. Okay. None of the students guessed their own rank to be 1. Okay. और हमें ये भी given है कि no student guessed their rank to be worse than 3. तो अब सिर्फ किरण ने ही अपने लिए 1 रैंक किया तो बाकी सभी क्या रैंक करेंगे, either 2 या either 3. Okay. While no student guessed that the rank of Pawan would be better than third. Okay. तो ये इसमें पवन भी शामिल है. Okay. While no student guessed that the rank of Pawan will be better than third. Except for Ram and Gaurav, none of the others guessed that Shravan would be ranked third. Okay. राम एंड गौरव ने श्रवण को 3 रैंक गैस की. अब देखिए राम एंड गौरव ही एक ऐसे हैं जिन्होंने श्रवण को 3 रैंक दी, तो श्रवण अपने आप को आइदर 1 या आइदर 3 देगा, पर हमें पता है किरण इज द ओनली वन जिसने खुद को 1 रैंक दी है, तो श्रवण अपने आप को 2 रैंक देगा. एंड राम गेस्ट पवन्स रैंक टू बी 4. ओके. एंड राम गेस्ट पवन रैंक टू बी 4. Except for Kiran, the rank of each student was guessed to be 5 by at least one student. Okay. हमें पता है कि जो हमारा पवन है उसकी यहाँ पे टेबल में हमें एटलीस्ट 1 5 मिलेगा. सेम हमारा गौरव के लिए, सेम हमारा श्रवण के लिए और सेम हमारा आर के लिए. तो हम कह सकते हैं इनकी एक्चुअल रैंक 5 तो नहीं होगी, है ना, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं अगर उनकी एक्चुअल रैंक जो होगी तो वो उनके टेबल में नहीं आएगी. तो हम कह सकते हैं इनकी एक्चुअल रैंक 5 तो नहीं होगी. तो 5 एक्चुअल रैंक हमारी किसकी होगी, किरण की होगी, क्योंकि किरण ही एक ऐसा जिसके पास एक भी 5 नहीं है. तो किरण की एक्चुअल रैंक कितनी होगी, 5. नाउ देखते हैं. while Shravan guessed the rank of Ram to be less than 4. Okay. Shravan guessed the rank of Ram to be less than 4. Okay. Kiran guessed that Pawan would be ranked better than Gaurav, while Pawan guessed Gaurav would be ranked first. Okay. Pawan guessed Gaurav would be ranked first. Okay. Shravan guessed the rank of the student whose actual rank was 5 to be 1. और हमें पता है एक्चुअल रैंक किरण की है तो उसने किरण की कितने रैंक गैस की, 1. ओके. एंड द रैंक ऑफ द स्टूडेंट whose actual rank was 3 to be 5. ओके. और जिसकी एक्चुअल रैंक 3 थी उसको उसने 5 दे दिया. ओके. इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है अभी. और देखते हैं हम क्या इंफॉर्मेशन अब यूज कर सकते हैं. फिर से हम एक बार और. Except for Pawan, none of the other guessed the rank of Gaurav would be better than that of Ram. Rank of Gaurav would be better than that of Ram. Okay. None of the students correctly guessed and no student guessed their own rank to be. Okay. Now राम का देखिए, राम अपने लिए या तो रैंक 1 लेगा खुद या तो 2 लेगा, और हमें पता है 1 पॉसिबल नहीं है तो खुद की गैस रैंक वो 2 गैस करेगा. सेम गौरव की 3 ऑलरेडी हो चुका है, 1 वो ले नहीं सकता तो 2 गैस करेगा.
ओके। और हमें ऑलरेडी गिवन था कि while no student guessed that the rank of पवन will be better than third, ओके, तो पवन अपनी खुद की रैंक भी 3 गैस करेगा, ओके, क्योंकि 4 नहीं करना उसको, हमें पता है सभी अपनी अपनी रैंक आइदर 1 2 या 3 गैस करेंगे, ओके। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए गौरव ने खुद को 2 रैंक दी है, ओके, और हमें पता है एक्सेप्ट फॉर पवन नन ऑफ द स्टूडेंट गेस द रैंक ऑफ गौरव वुड बी बेटर देन ऑफ दैट ऑफ राम। तो हम कह सकते हैं राम की रैंक 1 होगी, है ना, क्योंकि सिर्फ यहीं पे बस पॉसिबल है राम की रैंक जो कि गौरव से खराब है, बाकी सभी जगह राम इज रैंक्ड हायर, ओके, तो राम यहाँ पे 1 आ जाएगा ना वो। और देखिए अब देखिए किरण को तो हम यहाँ पे 5 दे नहीं सकते, है ना, क्योंकि उसकी एक्चुअल रैंक 5 है, तो हम उसकी पूरी टेबल में हम यहाँ पे 5 नहीं दे सकते, तो 5 हमारा यहाँ आएगा और 1 हमारा यहाँ आ जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा इतना। और देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। और देखते हैं while Shravan guessed the rank of Ram to be less than 4, guess the rank of Ram to be less than 4, ओके, तो 1 उसने ऑलरेडी दे चुका है, 2 उसने ऑलरेडी दे चुका है, तो हम कह सकते हैं उसने राम को 3 रैंक दी होगी, है ना, लेस देन 4। तो ये हो गया हमारा। और देखिए अब देखिए हमें पता है कि श्रवण के पास हमें एटलीस्ट 1 5 चाहिए, राम के पास भी हमें एटलीस्ट 1 5 चाहिए, है ना। तो इन जो हमारे इनके दो दो ब्लॉक्स हैं इनमें कहीं एक जगह तो 5 5 आएगा। अब देखिए राम को हम यहाँ पर 5 क्यों नहीं ले सकते, राम को अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो गौरव की रैंक यहाँ पे उससे बेटर हो जाएगी, जो कि हमें पता है कि गिवन नहीं है हमारे पास, है ना, क्योंकि हमें एक से ओनली एक्सेप्ट फॉर पवन किसी ने भी गौरव को बेटर रैंक नहीं किया है राम से। तो हम कह सकते हैं कि जो राम की एटलीस्ट 5 की रैंक होगी वो यहाँ होगी, ओके। तो सेम अगर राम की रैंक यहाँ पर आ जाएगी तो हमारे जो श्रवण की रैंक होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ओके, क्योंकि हमें एटलीस्ट 5 तो चाहिए है, और एक ही साथ दोनों जगह तो 5 आ नहीं सकता, है ना, राम, क्योंकि पवन 2 प्लेयर्स को तो 5 रैंक कर नहीं सकता, इसलिए हमारा डिफरेंट होगा। तो हमारा श्रवण का जो रैंक 5 है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए और क्या इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। किरण गेस पवन रैंक टू बी बेटर देन गौरव, ओके, किरण, अब देखिए रैंक 2 किसकी हो सकती है, जिसके पास उसकी टेबल में 2 नहीं होगा, जिसके पास उसकी टेबल में 2 नहीं होगा उसी की रैंक 2 होगी। तो देखिए राम के पास 2 है तो राम की एक्चुअल रैंक 2 नहीं हो सकती, श्रवण की एक्चुअल रैंक 2 नहीं हो सकती, गौरव की एक्चुअल रैंक 2 नहीं हो सकती, किरण की तो हमें पता है एक्चुअल रैंक 5 है, तो बचा कौन, पवन। तो हमारे पवन की एक्चुअल रैंक कितनी होगी, 2, ओके। सेम अब हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। सेम अब हम देखते हैं रैंक 1 किसकी होगी, जिसके टेबल में हमारे पास 1 नहीं होगा उसी की रैंक 1 होगी। पवन की एक्चुअल रैंक 2 है, किरण की एक्चुअल रैंक 5 है, इसके पास हमें 1 गिवन है, इसकी 1 नहीं हो सकती, इसके पास भी 1 नहीं हो सकती, तो हमारे श्रवण की रैंक 1 होगी, ओके। नाउ और देखिए रैंक 3 देख लेते हैं, हम रैंक 3 देख लेते हैं, हमें पता है श्रवण की रैंक 1 है, ओके। तो अब हमारे पास ये दो हैं, यहाँ पर हमें 3 गिवन है तो ये रैंक 3 नहीं हो सकता, तो रैंक 3 हमारा गौरव होगा, और रैंक 4 जो हमारा होगा राम होगा। तो अभी हमने एक्चुअल रैंक तो पता कर ली है सभी की। अब देखिए और क्या इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। नाउ एक चीज और देखिए, किरण गेस्ड दैट पवन वुड बी रैंक्ड बेटर देन गौरव, ओके, किरण की बात करते हैं हम यहाँ पर। किरण ने पवन को बेटर रैंक की है गौरव से, और हमें पता है गौरव से भी बेटर रैंक है राम की, ओके। तो गौरव की रैंक इन दोनों से कम हुई, ओके। और हमारे पास अभी 3 नंबर्स लेफ्ट है, हमारे पास कौन कौन से नंबर लेफ्ट है, 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, तो सबसे छोटी रैंक 4 किसकी होगी, गौरव की, ओके। पवन की एक्चुअल रैंक 2 है तो 2 तो यहाँ आएगा नहीं, तो पवन की हमारी रैंक आ जाएगी 3, और राम की हमारी रैंक आ जाएगी
2। ओके, तो ये भी हमारा यूज हो गया। और देखिए क्या यूज कर सकते हैं हम। नाउ गौरव को दो रैंक्स और डिस्ट्रीब्यूट करनी है, रैंक 4 एंड रैंक 5। ओके, तो रैंक 5 किरण के पास तो हो नहीं सकता, तो रैंक 5 यहाँ आएगा और रैंक 4 यहाँ आ जाएगा। ओके, नाउ हमें यहाँ पर अगेन 4 एंड 5 डिस्ट्रीब्यूट करना है। श्रवण को रैंक 4 एंड रैंक 5 डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर। ओके, देखते हैं कहाँ पर आएगा वो। क्या पवन को वो रैंक 4 कर सकता है? हाँ कर सकता है। गौरव को रैंक 4 कर सकता है, रैंक 5 कर सकता है। ओके, देखिए कहीं इंफॉर्मेशन जरूर गिवन होगी। श्रवण गेस द रैंक ऑफ द एक्चुअल हुज एक्चुअल रैंक, ओके, एंड द रैंक ऑफ द स्टूडेंट हुज एक्चुअल रैंक वाज 3 टू बी 5। ओके, तो जिसकी एक्चुअल रैंक 3 है उसको उसने 5 दिया, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर आइदर 2 या आइदर 4 होगा, यहाँ पर आइदर 2 या आइदर 4 होगा। देखते हैं इसके पास रिलेटेड, पवन से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास क्या? एक्सेप्ट फॉर पवन नन ऑफ द स्टूडेंट द रैंक, नन ऑफ द स्टूडेंट करेक्टली। ओके, किरण द रैंक ऑफ पवन। ओके, तो अभी हम ये तो हम पता नहीं लगा सकते। ओके, तो इतना हम ये सॉल्व नहीं कर सकते कि रैंक 2 किसकी है और रैंक 4 किसकी है। तो हमने यहाँ तक लगभग हमारी पूरी टेबल सॉल्व कर ली है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। किरण गेस्ट गौरव्स रैंक टू बी। ओके, तो किरण का पूछा है हमारा, किरण गेस्ट गौरव्स रैंक टू बी 4। ओके, किरण गेस्ट गौरव्स रैंक टू बी 4। विच स्टूडेंट वॉज एक्चुअली रैंक्ड फर्स्ट? तो हमें पता है श्रवण वॉज एक्चुअली रैंक्ड फर्स्ट। What is the rank of Ram as guessed by Pawan? Okay, rank of Ram as guessed by Pawan हम देख सकते हैं 5। Okay, 5. How many student guess the rank of Kiran to be 1? Okay, तो यहाँ पर 1 नहीं है, एक 1 2 3, 3 students guess the rank of Kiran to be 1। So guys, यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं काफी अच्छा सेट था ये, काफी अच्छी मीन्स काफ़ी ट्रिकी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अगर आपने कभी इस टाइप के सेट सॉल्व नहीं किए होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी सेट सॉल्व करने में, आपने ज़्यादा टाइम ले लिया होगा सेट सॉल्व करते हुए। तो आप देख सकते हैं किस तरह हम इस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। हमने सिर्फ बेसिक अपनी एक टेबल बनाई है और जो भी हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन थी हमने वह यूज़ की है। साथ ही साथ हमने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो यूज़ की है उससे हमने पूरा सेट सॉल्व कर लिया। लाइक कि यहाँ पर 5 नहीं होगा, ये हमारे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है। लाइक यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ 1 नहीं होगा, ये हमारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यूज कहती है। ओके, होती है। तो हमने नेगेटिव इन्फॉर्मेशन यूज करके सेट सॉल्व किया और आप देख सकते हैं हमने काफ़ी टाइम के अंदर इस सेट को सॉल्व किया है और इस टाइप के हम अभी काफ़ी सेट और करेंगे। तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।